السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ہندو دیوتا رام کی جائے پیدائش نیپال کا ضلع چیتوان میں ہے، جو یہاں کے ماد نگر پالیکا ضلع میں ہے۔ اس کے ایک علاقے کا نام ایودھیا پوری ہے۔ مہینہ بھر میں یہ دوسری مرتبہ ہے جب اولی نے رام کی جائے پیدائش کے معاملے میں ہندوستان کو چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے ایودھیا پوری کے عہدیداروں کو وہاں رام، لکشمن اور سیتا کے مجسمے نصب کرنے کا حکم دیا ہے اور تاکید کی ہے کہ نیپال کے چیتوان ضلع میں واقع ایودھیا پوری کو ہی اصلی ایودھیا کی حیثیت سے ایک پروجیکٹ کے طور پر فروغ دیا جائے۔ نیپالی اخبار دی ہمالین ٹائمز کے مطابق اولی نے مادی اور چیتوان کے عہدیداروں اور لیڈروں کے ساتھ 2 گھنٹے تک فون پر گفتگو کی اور انہیں مزید بات چیت کے لیے کھٹمنڈو بھی بلایا۔ اولی نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ رام کی پیدائش نیپال میں ایودھیا پوری میں ہوئی تھی۔ ان کی جنم بھومی ہندوستان کا ایودھیا نہیں ہے۔ اولی نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس ایسے ثبوت ہیں جو یہ ثابت کر دیں گے کہ رام کی پیدائش نیپال میں ہوئی تھی۔ ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ کے نیموزی نے الزام لگایا ہے کہ CISF کے ایک عہدیدار نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ ہندوستانی ہیں کیونکہ وہ ہندی نہیں بول سکتی۔ اس بیان کے بعد ایئرپورٹ کی حفاظت سے متعلق فورس نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جبکہ نیموزی دہلی جانے والی فلائٹ میں سوار ہونے کے لیے چنئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تھی۔ نیموزی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ آج ایئرپورٹ پر CISF کے ایک آفیسر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں ہندوستانی ہوں۔ انہوں نے یہ بات اس وقت کہی جب میں نے ان سے کہا کہ وہ تامل یا انگلش میں بات کریں کیونکہ میں ہندی نہیں جانتی۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کب سے ہندوستانی ہونے کا مطلب ہندی جاننا ہو گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا نیا کووڈ ٹیسٹ نہیں کیا گیا ہے، عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ دہلی BJP کے رکن پارلیمنٹ منوج تیواری کے ایک ٹویٹ کے بعد یہ وضاحت جاری کی گئی۔ امت شاہ گزشتہ ہفتے کورونا وائرس کے لیے مثبت پائے جانے کے بعد گڑگاؤں کے ایک ہاسپٹل میں صحت یاب ہو رہے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ جب ٹیسٹ کیا جائے گا تو سب کو اطلاع دی جائے گی۔ انہوں نے تمام افراد سے کہا کہ وہ وزیر داخلہ کی صحت کے بارے میں خیال ساریاں نہ کریں۔ کانگریس کے عبوری صدر کی حیثیت سے سونیا گاندھی نے 1 سال مکمل کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پارٹی میں عہدہ صدارت پر بحث چھڑ گئی ہے۔ کانگریس نے وضاحت کی کہ پارٹی کے نئے صدر کے انتخاب پر سونیا گاندھی عہدے پر برقرار رہیں گی۔ کانگریس کے ترجمان ابھیشیک سنگھوی نے آن لائن میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 10 اگست کو عبوری صدر کی حیثیت سے سونیا گاندھی کی میعاد ختم ہو رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عہدہ خود بخود خالی ہو جائے گا۔ جب تک مناسب سیاسی عمل کے ذریعے نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا اس وقت تک سونیا گاندھی عہدے پر برقرار رہیں گی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آج ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی 78ویں سالگرہ کے موقع پر سارے ملک سے 202 مجاہدین آزادی کو اعزازات پیش کیے۔ راشٹرپتی سے جاری کردہ ایک بیان میں یہ بات بتائی گئی اور کہا گیا ہے کہ ہر سال صدر جمہوریہ ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی سالگرہ کے موقع پر مجاہدین آزادی کو اعزازات دینے راشٹرپتی بھون میں ایک ایٹ ہوم استقبالیہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ تاہم سال حال کووڈ-19 وبا کے پیش نظر اس ضیافت کا اہتمام نہیں کیا جا سکا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس لیے ریاستوں مرکزی زیر انتظام علاقوں کی حکومتوں سے درخواست کی گئی ہے کہ صدر جمہوریہ کی جانب سے ضلع مجسٹریٹ، ایڈیشنل ضلع مجسٹریٹ، سب ڈویژنل مجسٹریٹ کے ہاتھوں ان کے مکانات پر مجاہدین آزادی کو ایک شال اور ان کا اعزاز عطا کرتے ہوئے ان مجاہدین آزادی کا احترام و اکرام کیا جائے۔ بابری مسجد انہدام معاملے میں CBI کی خصوصی عدالت کے سامنے بچاؤ فریق کی جانب سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے بلکہ دستاویزی ثبوت داخل کرنے کے لیے وقت دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خصوصی جج دھریندر کمار یادو نے ملزم سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کے وکیل کی درخواست پر 12 اگست تک بچاؤ میں ثبوت داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ گزشتہ روز سماعت کے دوران کوئی بھی ملزم حاضر نہیں ہوا۔ سبھی کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دی گئی ہے۔ کلیان سنگھ کے وکیل کے مشرا و ابھیشیک رنجن کی جانب سے عدالت کو درخواست دی گئی کہ ملزم کلیان سنگھ کے پاس کچھ ثبوت موجود ہے۔ ان کی عمر 90 برس ہے اور طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ کورونا کے پیش نظر وہ اپنے وکیل سے رابطہ کر کے ثبوت مہیا نہیں کرا پا رہے ہیں، اس لیے انہیں مزید وقت دیا جائے۔ عدالت نے ان کی درخواست کو تسلیم کرتے ہوئے 12 اگست تک ہر حال میں ثبوت پیش کرنے کو کہا ہے۔ اس سے قبل 16 ملزمین کو 1 ہفتے کا وقت ثبوت پیش کرنے کا دیا جا چکا ہے۔ بابری مسجد انہدام معاملے میں 31 ملزمین کے بیان درج ہو جانے کے بعد عدالت نے سبھی ملزمین کو اپنے بچاؤ میں ثبوت پیش کرنے کے لیے 30 جولائی کی تاریخ طے کی تھی، لیکن جمعرات کو پون پانڈے سمیت 16 ملزمین نے دستاویزی ثبوت داخل کرنے کے لیے مزید وقت مانگا تھا، جس پر عدالت نے انہیں 1 ہفتے کا مزید وقت دیا ہے۔ اتر پردیش کے ایٹا ضلع کے جلیسور ٹاؤن میں ہندو اور مسلم کاریگروں نے مل کر ایودھیا کی رام مندر کے لیے 2100 کلو گرام وزنی گھنٹی تیار کی ہے۔ کرافٹ مین اقبال میستری نے اس گھنٹی کا ڈیزائن تیار کیا۔ اس گھنٹی کو اوپر سے نیچے تک ایک ہی یونٹ میں تیار کیا گیا ہے۔ اس کی تیاری میں سونا، چاندی، کاپر، زنک، براز، لوہا اور دیگر اشیاء کا استعمال کیا گیا ہے۔
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नोटबंदी और नाखिस तरीके से जीएसटी के निफाज के बाद कोरोना बहरान के दौरान बगैर मनसूबाबंदी के लॉकडाउन के नतीजे में मुल्क की मईशत तबाह व बर्बाद हो गई है। अवलज़ीं कांग्रेस के यूथ विंग ने मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और इसका शिकार नौजवानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए रोजगार दो मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर बयान जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वजारत उज़्मा पर फायज होने के बाद नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ रोजगार फराहम करेंगे। उन्होंने नौजवानों के ख्वाबों पर सियासी सौदेबाजी की। हकीकत यह है कि मोदी के दौरे हुकूमत में अब तक 14 करोड़ नौजवान रोजगार से महरूम हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद की है कि 1 लाख करोड़ रुपए के ज़राअत के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से गाँव में ज़राअत पर मबनी सनतें कायम होगी, जिससे छोटे काश्तकार माली तौर पर बाइख्तियार होंगे। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़रई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इस फंड की मदद से किसान पैदावार तंजीमें और किसान ग्रुप गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कायम कर सकेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे किसान कारोबारी बन सकेंगे। मुल्क में 10,000 नए किसान प्रोड्यूसर्स तंजीमें तश्कील दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ताज़ा फल, सब्जियां, दूध और मछली पहुंचाने के लिए किसान रेल की शुरुआत की गई है। ये मुकम्मल एयर कंडीशन ट्रेन महाराष्ट्र और बिहार के दरमियान चल रही है। इन दोनों रियासतों के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसानों के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले क़वानीन को ख़त्म कर दिया गया है और ज़राअत को सनत जैसी सहूलत देने की कोशिश की गई है। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान मुल्क में निहायत ही मकबूल आम रियलिटी शो बिग बॉस के आइंदा सेशन में एक बार फिर वापस होंगे। इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन ने यह बात बताई। टीवी चैनल कलर्स पर बिग बॉस के 14वें एडिशन का प्रोमो जारी किया गया है। सलमान खान के पेनुअल फार्म हाउस पर यह प्रोमो शूट किया गया। इसमें 54 साला बॉलीवुड स्टार काश्तकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने वीडियो बयान में सलमान खान ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से आम जिंदगी में बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो गई है, इसलिए मैं चावल की खेती कर रहा हूं और ट्रैक्टर चला रहा हूं, लेकिन अब तब्दीली का वक्त आ गया है। वाज़ेह के 2010 से सलमान खान बिग बॉस की मेज़बानी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सितंबर में इसका आगाज मुमकिन है। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर का कहना है कि उन्होंने सुपरहिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में काम करने से इनकार कर दिया था। साल 2013 में रोहित शेट्टी की हिदायतकारी में बनी सुपरहिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने मरकजी किरदार अदा किए थे। करीना कपूर का कहना है कि इन्हें इस फिल्म में काम करने की पेशकश मिली थी, लेकिन उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया था। करीना कपूर ने बताया कि रोहित शेट्टी इन्हें चेन्नई एक्सप्रेस में लेना चाहते थे, लेकिन इस वक्त वो आमिर खान के साथ फिल्म तलाश की शूटिंग में मसरूफ थी। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। वज़ारत दिफा की जानिब से माजी में खुद कफील हिंदुस्तान की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया था। अब भारत में भी 101 के करीब मोहलिक हथियार और ज़रूरी सामान बनाया जाएगा। आने वाले वक्त में इनकी दरामद को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के मुताबिक जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले पर तकरीर करेंगे, तब खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के लिए एक नई लाइन खींचेंगे। एक प्रोग्राम में राजनाथ सिंह ने कहा कि दिफाई शोबे में घर पर 101 सामान बनाने का बहुत बड़ा विजन फैसला है। इसे आगे बढ़ाते हुए 15 अगस्त को पीएम मोदी खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तरफ एक नई लाइन खींचेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिकी टिकटॉक की खरीदी के लिए बातचीत शुरू कर दी है, जबकि बिल गेट्स ने दोनों कंपनियों के दरमियान इस मुआहदे को जहर का प्याला पीने के मुतरादिफ करार दिया है। अपने एक इंटरव्यू में माइक्रोसॉफ्ट के माउन वानिक ने बताया कि सोशल मीडिया बिजनेस में बड़ी कंपनी होना आसान काम नहीं है। कोई नहीं जानता कि इस मुआहदे के साथ क्या होने वाला है, ताहम अगर ये जहर का प्याला है तो हमें इसे पीना ही पड़ेगा। जब इनसे पूछा गया कि क्या माइक्रोसॉफ्ट के सोशल मीडिया गेम्स में दाखिले पर इन्हें एतराज़ है, तो गेट्स ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के इस मैदान में आने से फेसबुक को मजीद मुसाबिकत हासिल होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस मुतालबे पर कि अगर कोई अमेरिकी कंपनी टिकटॉक खरीदती है तो इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाएगा। गेट्स ने कहा कि इनकी बातें हैरत अंगेज हैं। कुछ भी हो, माइक्रोसॉफ्ट किसी भी कीमत पर यह मुआहदा करेगा। मियामी से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिकी सय्याह स्टीव ने इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। मक्के मुकर्रमा में अमेरिकी सय्याह स्टीव ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस के हाथों इस्लाम कबूल करने की सआदत हासिल कर ली और कलमा शहादत पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। शेख अल सुदैस ने अमेरिकी सय्याह को इस्लाम कबूल करने पर मुबारकबाद दी और गले से लगाया। इस मौके पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए अमेरिकी स्टीव का कहना था कि दीन इस्लाम की हक्कानियत से रोशनास कराने और अपना बंदा बनाने की तौफीक देने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। शेख अल सुदैस और दीगर उलमा का भी शुक्रगुजार हूँ, जिनके बगैर तारीकी से रोशनी की जानिब सफ़र मुमकिन नहीं था। लेबनान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के बाद लेबनान की वज़ीर इत्तलात मन्नाल अब्दुल समद
इतवार के रोज मुस्तफ़ी हो गई। बैरूत में गुज़िश्ता मंगल को हुए तबाहकुन धमाकों के मुतासरीन हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाए। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक वज़ीर इत्तलात मनाल अब्दुल समद का एक बयान में कहना था कि बैरूत में बड़े पैमाने पर तबाही के बाद मैं हुकूमत से मुस्तफ़ी हो रही हूँ। तेलंगाना में कोरोना वायरस की सूरत हाल का नीति आयोग के रुकन डॉक्टर विनोद कुमार पाल ने जायजा लिया और चीफ सेक्रेटरी हुकूमत सोमेश कुमार और हुकूमत हिंद के ओहदेदारों के हमरा रियासती इंतजामिया के साथ तबादला ख्याल किया। चीफ सेक्रेटरी ने नीति आयोग के रुकन को बताया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव वबाई मर्ज के बारे में रोजाना शख्सी तौर पर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की रहनुमाई में रियासत में वायरस के मामलात में कई उमूर में बेहतरी हुई है। हुकूमत की जानिब से टेस्टिंग की सहूलतों में इजाफे के अलावा दवाखानों में इंफ्रास्ट्रक्चर और दवाखानों में ऑक्सीजन बेड्स की दस्तियाबी में भी इजाफा कर दिया गया है। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि दवाखानों में तिब्बी आलात और तमाम इस्तेमाल होने वाली अशिया का स्टॉक मकदार में दस्तियाब रहे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने आज अवाम से इनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए ट्विटर पर आस्क KTR प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस पर उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में RTC की बसों को चलाने और MMTS व मेट्रो रेल सर्विस शुरू करने के मामले में मरकजी हुकूमत की इजाज़त का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के इलाज के लिए खानगी दवाखानों की जानिब से भारी फीस वसूल किए जाने की शिकायत मौसूल हुई है, जिस पर 2 हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। मजीद शिकायत मौसूल होने पर हुकूमत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगी। सरकारी दवाखाने में कोरोना वायरस का बेहतर इलाज किया जा रहा है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो सरकारी दवाखानों से रुजू होते हुए इलाज करवाएं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर व हिंदुस्तानी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात की। मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में वजीर मौसूफ की क़यामगाह पर हुई मुलाकात के दौरान लॉकडाउन के बाद रियासत में क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस और मैच के दौरान लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को मुख्तलिफ मशवरे व तजावीज़ दिए। वजीर मौसूफ ने कहा कि क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस और मैच के दौरान बॉलिंग के वक्त बॉल को मुंह में या थूक लगाने से एहतियात बरती जाए। प्रैक्टिस करते वक्त खिलाड़ियों को एक जगह जमा न होने दें और करीब में आकर बातचीत करने भी ना दें। हर एक को प्रैक्टिस के मास्क लगाने और समाजी फासले को बरकरार रखने का मशवरा दें। शहर हैदराबाद को गुज़िश्ता 1 सदी से पानी सरबराह करने वाले ज़ख़ीरे आब उस्मान सागर की हालत तशवीशनाक है। यहाँ पानी इंतहाई कम हो गया है। इसके बावजूद हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से रोजाना 2 मिलियन लीटर पानी हासिल किया जा रहा है, जो इमरजेंसी वाटर पंप्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मानसून सीजन आधा गुजर चुका है। इसके बावजूद उस्मान सागर की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ है। उस्मान सागर से शहर को 1920 से पानी सप्लाई किया जाता है। हालांकि इस बार अच्छी बारिश हुई है, लेकिन उस्मान सागर में पानी का ज़्यादा ज़ख़ीरा नहीं हो सका। तेलंगाना में तालीमी इदारों की कशादगी के नए क़वायद और रहनुमाना खतूत की तैयारी का अमल जारी है और कहा जा रहा है कि तेलंगाना में जब कभी स्कूलों की कशादगी अमल में लाई जाएगी, एक क्लासरूम में 20 से 25 बच्चों से ज़्यादा बिठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और स्कूलों में तवील मुद्दत तक समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाना लाजमी होगा। इसके लिए रहनुमाना खतूत जारी किए जाएंगे। इब्तदाई दिनों में सिर्फ हाई स्कूल की क्लासेस के आगाज़ पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है, जबकि प्राइमरी व मिडिल स्कूल के आगाज़ के सिलसिले में सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही फैसला किया जाएगा।